So let me talk about a new reading, that is credit analysis. So how can we do the credit analysis of a company? So that is the reading. So let me see. What do we mean by credit risk? So this is the risk related to the credit worthiness. So if borrower fails to pay the scheduled interest payment or the principal component, so we say this is credit risk. So if any organization is taking loan and they are not making payment on time, whether the payment relates to interest or to the, you can say, principal component, so that is what, that is credit risk. As simple as that. Now, when we talk about credit risk, so it has two parts. One is default risk, second is severity, loss severity. कितना ज्यादा लॉस होगा और लॉस होने के क्या चांसेस है, इसका मतलब डिफॉल्ट करने के क्या चांसेस हैं. So default risk is the probability that a borrower will default. That is what default risk. Loss severity, it means how much will be the loss. तो अगर डिफॉल्ट होता है, तो अगर डिफॉल्ट होता है तो इन्वेस्टर को कितना नुकसान होगा, दैट इज लॉस सिवियरिटी. So the credit risk has two components. One is default, second is loss severity. Now there is a risk called spread risk. What is this spread risk? It is the possibility that a bond loses its value because of its credit spread widens. What do we mean by it? Let us see. Question is, what is spread? Spread means difference between two interest. So for example, there is a sovereign bond. And there is a corporate bond. Okay. If we talk about sovereign bond, so let us say sovereign bond is giving 7% interest and the corporate bond is giving 9%. So what is the spread between these two bonds? That is 2%. Now what happens, for example, there is an economic crunch, or there we can say there is a recession kind of situation in the economy. So what is happening? So let us say interest rates are rising. So let us say sovereign bond rates have gone up to 8%. But this corporate bond, the rate of interest has become 12%. So here in this case, credit spread was 2%. Here in this case, credit spread is how much? Is 4%. So if the credit spread widens, so there is a loss here. Yes, because the required rate of return is now high. And if the required rate of return is high, so what happens? Bond value comes down. तो जितना ज्यादा ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हाई होगा, उतनी ही बॉन्ड के प्राइसेस कम होंगे. तो पहले क्रेडिट स्प्रेड कम थी, अब क्रेडिट स्प्रेड बढ़ गई है, तो जो बॉन्ड की वैल्यू में लॉस होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड स्प्रेड रिस्क. स्प्रेड रिस्क. Is it fine? Now spread risk again include two: credit migration or downgrade risk and the market liquidity risk. इसके भी दो पार्ट हैं. देखिए स्प्रेड रिस्क कैसे बढ़ेगा. पहला तो ये
कि जैसे ही इकोनॉमी में कुछ डाउन टर्न हुआ या डाउन टर्न नहीं भी हुआ, हो सकता है मान लीजिए इस कॉर्पोरेट की पहले क्रेडिट रेटिंग थी ट्रिपल ए, अब इसकी क्रेडिट रेटिंग कर दी गई है डबल ए, तो डबल ए क्रेडिट रेटिंग कर दी गई है, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न वुड बी हायर नाउ। जितनी अच्छी क्रेडिट वर्दीनेस होगी उतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जितनी कम क्रेडिट वर्थ होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो क्रेडिट रेटिंग अगर डाउन होगी तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इनसे बढ़ जाएगी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्प्रेड रिस्क, इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक तो ये कि अल्टीमेटली डाउनग्रेड का रिस्क है, डाउनग्रेड हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्रेडिट स्प्रेड बढ़ जाएगी। And the second is market liquidity risk. It means there is a possibility if the credit rating comes down, it is not now liquid enough. In the market now, people are not ready to buy it. So it means if it is not liquid enough, तो क्या होगा, जितना इसकी फेयर वैल्यू है उससे भी नीचे बिकेगा ये बॉन्ड। So this is called liquidity risk. So how can we get the spread risk? Spread risk has two components. One is downgrade risk, we call it as credit migration, and the second is liquidity risk, market liquidity risk. So what is the expected loss? Expected loss is basically if we multiply these two components, कि कितना loss होगा if we multiply these two components, so it gives me what? It gives me expected loss. Sarthak, is all this terminology clear to you? Sarthak, is it fine? Chinmay, is it fine? Yes, sir. Shanay? Shanay, is it done? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, let me describe the seniority rankings. So, as I said in the last reading, so what can be there? There can be priority, कि किसको पहले पेमेंट की जाएगी, किसको बाद में. So, that is called ranking according to seniority or priority. So, those bonds which are having first lien, जिनके ऊपर फर्स्ट लियन होगा या फिर जिनको हम सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स बोलते हैं, व्हाट दे आर, इट मींस दे विल बी पेड फर्स्ट. सबसे पहले किनको पेमेंट मिलेगी, इनको पेमेंट मिलेगी. फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, सेकेंड लियन. फिर किसका आएगा, सीनियर अनसिक्योर्ड. फिर सीनियर सबऑर्डिनेट, फिर सबऑर्डिनेट, फिर जूनियर सबऑर्डिनेट. सो किस कैटेगरी को वो बॉन्ड बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग पेमेंट होती है. नाउ लेट अस से देयर आर 3-4 bonds issued in this category, so they all have same priority of claims. तो एक ही अगर हम बात करते हैं, एक ही सीनियोरिटी क्लास के अंदर 3-4 बॉन्ड्स अलग अलग है, तो सबको इकट्ठा ही पेमेंट किया जाएगा. So what are the chances? Definitely those issues which have higher, you can say rating, higher ranking, so chances are higher that the money will be recovered from them easily. जिस बॉन्ड की जितनी ज्यादा रैंकिंग है, चांसेस है कि उस बॉन्ड को उतना ही पैसा मिल जाएगा, जल्दी पैसा मिलेगा. इट मींस यहां पर डिफॉल्ट के चांसेस सबसे कम है. जैसे जैसे सीनियोरिटी लेवल रैंकिंग कम होती जाती है, कंपनी के डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ सकते हैं, बढ़ जाते हैं. सबसे पहले इन्हें पेमेंट की जाएगी, फिर इनको, फिर इनको, फिर इनको, फिर इनको, एंड सो ऑन. तो जितनी कम सीनियोरिटी है उतना ही ज्यादा क्रेडिट रिस्क है.
lower the seniority, higher is the credit risk. Higher is the seniority, lower is the credit risk. क्या ये पॉइंट क्लियर होता है? इज इट फाइन? Now, so this will come later on when you will be doing the numericals. Now you can see. So there can be, again, now we are talking about the credit ratings. Now let us see. What are these credit ratings if we are talking about? So again, we can have two type of credit ratings. Okay. One is issuer credit rating and the second is issue credit rating. What do we mean by it? For example, if I am talking about Tata Steel, so the rating, credit rating given to this company, overall this company, that is called issuer credit rating. Okay. And what is issue credit rating? So for example, this Tata Steel is coming up with a debt issue, they are raising money. So the rating which is given to you, that particular specific debt issue, that is called issue rating. So there are two type of ratings. One is issuer rating, second is issue rating. Okay. So company, on the basis of the credit worthiness of the company, overall credit worthiness of the company, whatsoever rating is given, that is issuer credit rating. And on the basis of the issue, for example, this Tata Steel has already raised a lot of debt. Although this company is having very good credit rating, but because this company is having already a lot of debt, so whatsoever new debt company is issuing, there might be a possibility that ultimately that issue is getting very low rating. So that is what, that is this rating, issue based rating. Now, what do we mean by notching? Notching is a practice of adjusting an issue credit rating upward or downward from the issuer credit rating. So for example, this issue is getting double B, triple B rating, and the company is having A credit rating. Issuer credit rating is A, and company and the issue credit rating, a specific issue credit rating is triple B. Okay. So if considering these two things together, if this issue credit rating is either moved upward, क्योंकि कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, तो भले ही इशू को कम मिली है, कंपनी की अच्छी है, तो इसकी क्रेडिट रेटिंग और थोड़ी बेटर हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि ओवरऑल अगर क्रेडिट रेटिंग की बात करते हैं तो डबल बी है. क्यों? क्योंकि कंपनी की तो ए है ना, भले ही इस इशू को ट्रिपल बी मिली है, कंपनी की ए है, तो ऊपर की तरफ ये रेटिंग मूव कर जाएगी. इसी तरीके से मान लीजिए क्या होता है कि इशू की रेटिंग है ट्रिपल बी, लेकिन कंपनी की रेटिंग है हाउ मच? कंपनी की रेटिंग है बी. तो ट्रिपल बी इज हायर, बी इज लोअर, सो इसकी क्रेडिट रेटिंग क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ऑन एन एवरेज हम इस पूरी रेटिंग की बात करते हैं तो डबल बी रेटिंग दे सकते हैं इस इशू को. यस, क्योंकि कंपनी की बहुत लोअर रेटिंग है, तो इसके इफेक्ट को हमें एडजस्ट करना चाहिए. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज नोचिंग. That process is called as notching. I hope this point is clear. Chinmay and Sarthak, is it done? Yes, sir. Okay. So
this is merging. Now there are certain risks also. Now before coming to it, we discussed one thing, that ultimately किनको पहले मिलता है? सबसे पहले मिलता है इनको, फिर इनको, फिर इनको, फिर इनको, इस तरीके से मिलेगा। बट मान लीजिए व्हाट हैपेंस, द कंपनी इज इन बैंकरप्सी, कंपनी इज इन बैंकरप्सी, तो क्या होगा? इन सबकी मीटिंग होगी, ये सब बैठेंगे, कोर्ट की तरफ से बैठेंगे लोग, मैनेजमेंट की तरफ से लोग बैठेंगे, सब बैठेंगे, ये सब लोग भी बैठेंगे। मान लीजिए सब अलग अलग ट्रांचेस के डेट इशूड थे। सो जनरली क्या होगा, अब ये लोग बोलते हैं कि भाई देखो, कंपनी ने हमें लिख कर दिया था कि सबसे पहला राइट हमारा है लोन के ऊपर, लोन रिपेमेंट में सबसे पहले हमारा पैसा रिकवर होगा। ये लोग क्या ऐसा होने देंगे? इनको पता है कि अगर इसका पैसा रिकवर हो गया तो एसेट्स कुछ ऐसा सच बचेंगी नहीं, हमें तो कम मिलेगा बहुत, तो ये क्या करेंगे? ये डेफिनेटली ये चीज अप्रूव होने नहीं देंगे। सो कहने को भले ये होता है कि सबसे पहले पेमेंट पूरी की पूरी इनको मिलेगी, फिर इनको मिलेगी, फिर इनको मिलेगी, लेकिन ये भी लोग क्या सोचते हैं कि ठीक है सेटलमेंट करना है ना, तो वो बोलते हैं कि ठीक है पूरा का पूरा हम पहले अपनी रिकवरी का नहीं लेंगे, कुछ आपको भी देते हैं, कुछ आपको भी देते हैं। सो ऑल्दो अकॉर्डिंग टू द बुक्स सबसे पहले इनको मिलना चाहिए सारा का सारा, इनका फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्लेम के ऊपर जितनी भी एसेट्स है फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी है। लेकिन टू हैव अ स्मूथ सेटलमेंट, टाइमली सेटलमेंट, तो वो क्या करते हैं, अपने इस राइट को उन्हें फोरगो करना पड़ता है, तो वो सबके अंदर सेटल करते हैं कि ठीक है हम 50% ले लेते हैं, 10% आप ले लो, 10% आप ले लो, इस तरीके से ले लो, लेकिन इस काम को होने दो। इस तरीके की चीजें होती है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, now so now let me move further. Okay, so you can see now there is a risk on relying on credit ratings. Can you tell me, in India, I am just giving you some work, you just explore it. In India, how many companies do have AAA credit rating? And in US, how many companies have AAA credit rating? Yes. Can you find it out? Please do it, explore it. I am saying in India, how many companies have AAA credit rating? In US, how many companies have AAA credit rating? इंडिया में कितनी कंपनीज को AAA क्रेडिट रेटिंग मिली है? अमेरिका में कितनी कंपनीज को AAA क्रेडिट रेटिंग है? कैन यू टेल? सर गूगल पे तो इन इंडिया इट्स सेइंग कि देयर आर 2765 कंपनीज। ओके, एंड यूएस? दो कंपनी बता रहा है, सिर्फ दो कंपनीज, कौन कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट एंड जॉनसन। ओके, देखिए तो अमेरिका के अंदर सिर्फ दो ही कंपनी है जो AAA क्रेडिट रेटिंग है। कौन सी? जॉनसन एंड जॉनसन और माइक्रोसॉफ्ट। और इंडिया में देखो, हालांकि ये 300 के आसपास है, लेकिन इतनी कंपनीज हैं AAA क्रेडिट रेटिंग। तो क्या मतलब इनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है?
इसका मतलब एप्पल को ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग नहीं है, पेप्सी को ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग नहीं है, कोका कोला को ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल और जितने भी कंपनीज बोलते हैं हम लोग, कौन कौन सी, एडोब को ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग नहीं है, फेसबुक को ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग नहीं है, ठीक। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज, इनकी ये कंपनीज इतनी बड़ी बड़ी हैं कि ये कई कई कंट्रीज की इकोनॉमी के बराबर है। सर क्रिसिल के वेबसाइट पे देखा तो वो भी 2765 ही बता रहे हैं। चलिए ये तो और ज्यादा अच्छा हो गया, 2765 बता रहे हैं। मतलब कैन यू इमेजिन, इनमें से ये कंपनीज ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग नहीं है, और यहां पर हिंदुस्तान की कंपनीज इतनी ज्यादा अच्छी क्रेडिट वर्थ है कि करीब करीब 3000 के आसपास कंपनीज को ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग है। कैन यू बिलीव ऑन इट? If I ask you, can you believe on it? I think Apple, the total, if we talk about the business of the worth of this Apple, or the business of this Apple, its whole empire, I think, is bigger. There was an article some days back. The whole empire is bigger than the GDP of India. Okay. सो कैन यू बिलीव, इनको ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग नहीं है, इसको इतनी सारी कंपनीज को ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग है। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हु आर गिविंग क्रेडिट रेटिंग। सर एक नेशनल है और एक ग्लोबल है ना, कि जॉनसन और माइक्रोसॉफ्ट को जो है वो ग्लोबल ट्रिपल ए रेटिंग है। हाँ, ग्लोबली भी ट्रिपल ए रेटिंग है। तो अगर हम वहां की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे तो भी वहां पर दो चार ही कंपनीज हैं, सिर्फ यही दो कंपनीज हैं जिनको ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग है। क्योंकि वाई वी आर सेइंग ग्लोबल, ग्लोबल क्योंकि ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी वहीं की है, या तो मूडीज की है या फिर S&P 500 की है, तो उन्हीं की है। सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इफ वी टॉक अबाउट, सो क्रेडिट रेटिंग्स कैन चेंज ड्यूरिंग द लाइफ। आज कंपनी ने डेट इशू किया, कंपनी की क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है, पोजीशन बहुत अच्छी है, बाद में जाके डाउन हो गई, जिन लोगों से डेट ले रखा था वो तो फंस गए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कैन नॉट ऑलवेज जज रिस्क एक्यूरेटली। आई होप यू पीपल मस्ट हैव हर्ड अबाउट द IL&FS केस, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। सुना है आप लोगों ने? 2019-20 के आसपास बात करते हैं तो हाँ। इट मींस, कैन यू बिलीव, जब न्यूज आ गई थी मार्केट में IL&FS इज ऑन बैंकरप्सी, तब भी उसकी क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल ए थी, तब भी उसकी क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल ए थी। तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनीज भी, ये रेटिंग एजेंसीज भी हमेशा इसको करेक्टली एक्यूरेटली जज करेंगी। दैट इज द प्रॉब्लम। फर्म्स आर सब्जेक्ट टू रिस्क ऑफ अनफोर्सीन इवेंट्स, so there might be unforeseen events in the future. Yes, market prices of bonds often adjust more rapidly than credit ratings. तो जो बॉन्ड के प्राइसेस हैं मार्केट में वो जल्दी हो जाते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं इन कंपैरिजन टू क्रेडिट रेटिंग। सो फॉर एग्जांपल, some news comes that now there is a problem in the company, so it is not like that credit rating आज ही कम कर दी जाएगी, उसको असेस किया जाएगा, टाइम लगेगा। लेकिन जैसे न्यूज आएगा इस कंपनी में प्रॉब्लम है, बॉन्ड के प्राइसेस के इफेक्ट की बात करते हैं, बॉन्ड के प्राइसेस पर तो आज ही इफेक्ट आ जाएगा ना। So these are the problems with the credit rating agencies. These are the problem with relying on credit rating agencies. I hope this point is clear to everyone. These points are clear to everyone. Is it done? चिन्मय, क्लियर होता है? सार्थक, इज इट डन? हाँ सर, और मैंने कुछ गलत पढ़ दिया, टोटल ट्रिपल ए 276 है Yes, sir. कंपनी। मैं कह रहा हूं कि 300 के आसपास है, 276। पहले वो ये 245 के आसपास थी, अब ये 276 है। तो ये है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की अगर हम बात करें। Now
there are four things. Traditionally, we analyze these four things to find out the credit worthiness. If we want to do the credit analysis कि ये कंपनी कैसी है, तो अल्टीमेटली इन चार चीजों को हम लोग देखते हैं. फर्स्ट इज कैपेसिटी. Whether what is the capacity, whether the company can easily pay the debt or not. So उसके लिए हम क्या देखते हैं, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स कैसे हैं और कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं. So we look at what? We look at the capacity. Collateral is if there is any collateral attached with the debt or not. If collateral is attached, then chances that money will be paid easily that are higher. So default chances are less. Covenant, what kind of covenants are there? Positive, negative, that kind of covenant. So ultimately we know it is a kind. Guys, give me guys, I'm just coming in 2-3 minutes. So sorry for that. I'm just coming in 2-3 minutes. Okay. Yes. So we are talking about that it depends upon 4 C's. So capacity, collateral, covenants, and character. So when we talk about character, कंपनी देना चाहती भी है नहीं, मैनेजमेंट कैसी है, मैनेजमेंट का पर्पस फ्रॉड करने का तो नहीं है. अर्निंग्स की बात करते हैं. सो वेदर देयर इज अ रेगुलर अर्निंग, या ऐसा है कि किसी साल में बहुत अर्निंग हो जाती है, अदरवाइज लॉसेस में रहती है. सो क्वालिटी ऑफ लर्निंग्स वी विल चेक. एंड व्हाट हैज बीन द past track record. So all that kind of things we read, we talk about when we talk about credit analysis. Okay. Now, yes. Can you try all these questions, please? I am giving 2 to 3 minutes to everyone. Try these questions. सर कुछ क्वेश्चन में डाउट है सर. कौन से वाले में? थर्ड. ओके, तो देखना शुरू करते हैं. पहले ये 3 कर लिया आपने, कोई नहीं, इसको रहने दीजिए. देखिए किस चीज की हमने बात की है. अभी मैंने आपको बताया था, इन द केस ऑफ बैंक्रप्सी द प्रायोरिटी ऑफ क्लेम माइट बी वायोलेटेड. तो हो सकता है कि जो लियन है, जो सीनियर वाले हैं, उनको सबसे पहले ना मिले, क्योंकि सबको क्या करना पड़ सकता है कि आपस में ये नेगोशिएशन कर सकते हैं. सो द सेम थिंग इट इज आस्किंग हियर. यही चीज तो पूछ रहा है वो यहां पर. क्या ये पॉइंट क्लियर होता है? तो इसका आंसर सर बी है क्या फिर थर्ड का? सोचो. Then again, please try all these questions as well. Is it done? यस सर. Okay, so let me see. Please, you can see. I hope कौन से गलत हैं आपके? सर थर्ड और फोर्थ. फर्स्ट और फोर्थ. Third or fourth. So first, third, fourth, all these 3. So first की बात करते हैं. So the 2 components of credit risk are, ये तो हमने पढ़ा था. What are the 2 components? One is default risk, second is loss severity. कितनी प्रोबेबिलिटी है डिफॉल्ट होगा एंड कितना लॉस होगा, यही दोनों तो हमारे क्रेडिट रिस्क के कंपोनेंट होते हैं. सार्थक, इज इट फाइन? यस सर.
नाउ द थर्ड वन, तो अभी अभी तो मैंने बताया बैंक्रप्सी के टाइम पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट लियन वाले थे उनको सबसे पहला मिलना चाहिए, देन सेकंड लियन को, देन सिक्योर्ड, देन सबऑर्डिनेट, इस तरीके से मिलना चाहिए था। लेकिन क्या होगा, इसका वॉयलेशन हो जाता है बैंक्रप्सी में। क्यों? क्योंकि मैंने बताया मैनेजमेंट में ये सभी लोग, सभी पार्टीज बैठेंगी, कोर्ट की तरफ से लोग बैठेंगे, तो क्या होगा, जब कोर्ट कहेगा कि ठीक है पहले इनको पेमेंट कर दो, तो बाकी सब एग्री करेंगे ही नहीं, क्योंकि पैसा तो उनका भी फंसा हुआ है। तो उनको सेटलमेंट करने के लिए कि ठीक है नेगोशिएट कर लेते हैं कि ठीक है सारा पैसा मैं नहीं लूंगा, कुछ आप ले लेना, कुछ आप ले लेना, इस तरीके से अल्टीमेटली हो सकता है कि जितना उनको मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा है। तो यही तो होता है। तो क्रेडिटर्स नेगोशिएट टू अ डिफरेंट आउटकम। होना क्या चाहिए था, सबसे पहले इनको पूरा, बाकी जो पैसा बचा फिर इनको, बाकी जो पैसा बचा इनको, बाकी जो पैसा बचा इनको, अदरवाइज नहीं। लेकिन सबको कुछ कुछ मिल जाता है। क्या ये पॉइंट क्लियर होता है? थर्ड वाला चिन्मय, इज इट फाइन? Yes, sir. Now fine. ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस, और कौन सा था? 4. सो नोचिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज डिफरेंस बिटवीन। सो नोचिंग एक प्रोसेस है जिसमें जो इशू और इशूअर दोनों की जो क्रेडिट रेटिंग है, तो इशू की क्रेडिट रेटिंग को यहां से यहां पर या यहां से यहां पर लाया जाता है। इस प्रोसेस को जनरली नोचिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इन तीनों में से देखते हैं मोस्ट करेक्ट क्या है। अ कंपनी क्रेडिट रेटिंग एंड एन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की तो कोई बात ही नहीं होती है। एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग एंड नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग, ये भी नहीं होता है। ये रिलेशनशिप किसके बीच में ये पूरी प्रोसेस एस्टेब्लिश करती है देखा जाए तो, इशू की क्रेडिट रेटिंग और इशूअर की क्रेडिट रेटिंग। तो इन तीनों में से ऑप्शंस यही है जो इशू की क्रेडिट रेटिंग और इशूअर की क्रेडिट रेटिंग के बीच की बात कर रहा है। तो इस यही मेरा क्या है, करेक्ट है। क्या ये पॉइंट क्लियर होता है? हाँ जी, चिन्मय एंड सार्थक, इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Now, when we talk about the credit analysis, so we know 4 C's are there. When we talk about any credit rating agency or whenever we want to do credit analysis, we look at certain financial ratios as well. So, is financial statement techniques, financial statement analysis done with you? हो गया है वो आप लोगों का? हाँ सर. ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, लीवरेज, कवरेज रेशियोज, तो इन सबको हम एसेस करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, so we talk about operating profit margin. So if it is high, it means credit rating is high. Cash flow, if we have cash flow from operations, high cash flow from operations, then it is a very good sign. If we have good fund flow from operation, that is a good sign. So if we talk about free cash flow to equity, if this is higher, that is a good sign. And even if we talk about the cash flows which are after distributing dividends, so if they are higher, that is a good sign. Leverage ratios, so we talk about the we can say how much debt we are using, so that is leverage ratios. So we calculate different ratios like debt to capital, debt to EBITDA, fund from operations to debt. So all these kind of ratios we calculate. So this is leverage ratios. Then coverage ratios, so you know interest coverage ratio, for example EBIT to interest or EBITDA to interest. Yes,
So if these ratios are higher, that is a good sign. If these ratio is low, leverage ratios are low, that is a good sign. If this is higher, then it is a good sign generally. If these numbers are higher, this is a good sign. Profitability ratios are higher, this is a good sign. So please, the same thing which we discussed, please, you just read it. You just read it. Is it done? Yes, sir. So that is now. Now let me talk about corporate bond yield. So if we talk about corporate bond yield, it means how much a corporate should pay. If there is a corporate which want to raise the loan, so how much they should pay? So it depends upon many factors. So they should pay risk-free rate, real risk-free rate, plus inflation rate, plus credit spread. On the basis of credit rating, how much additional should be paid. So if there is any credit rating, if there is any company whose credit rating is high, so credit spread would be less. If there is any company whose credit spread is lower, credit rating is lower, so this credit spread would be higher. Yes. मैच्योरिटी प्रीमियम, जितना ज्यादा टाइम पीरियड बचा हुआ है मैच्योरिटी में, उतना ज्यादा यील्ड होगी. लिक्विडिटी प्रीमियम, whether the bond is liquid enough or not. अगर मार्केट में इजीली ट्रेडेबल है तो कम प्रीमियम होगा, अगर मार्केट में इजीली लिक्विड नहीं है, इजीली ट्रेडेबल नहीं है, तो लिक्विडिटी प्रीमियम ज्यादा होगा. सो ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. सो जनरली कोई कंपनी अगर बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट कूपन पे करने की बात कर रही है, डिसाइड करने की बात है, तो उसमें ये सब फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं. Then what is yield spread? An issue's yield spread to its benchmark includes its credit spread and liquidity premium. Okay. So अगर yield spread की बात करते हैं, मान लीजिए एक 10 ईयर का कॉर्पोरेट बॉन्ड है और 10 ईयर का सॉवरन बॉन्ड है. मान लीजिए ये क्या है, बेंचमार्क है. तो लॉजिकली देखिए, जो सॉवरन बॉन्ड होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड होगा, वो भी कितनी रिटर्न पे करेगा? एटलीस्ट दे विल पे फॉर रिस्क फ्री रिटर्न एज वेल एज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन और मैच्योरिटी. सॉवरन बॉन्ड इन तीनों के लिए पेमेंट करेगा. यस. कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या है? इन तीन फैक्टर्स के साथ साथ क्रेडिट स्प्रेड और लिक्विडिटी प्रीमियम, इन दोनों की भी बात कर रहे हैं. सो इफ आई टेक द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, दैट इज कॉर्पोरेट बॉन्ड माइनस सॉवरन बॉन्ड, सो व्हाट विल बी लेफ्ट? ओनली दीज टू कंपोनेंट्स विल बी लेफ्ट. वन इज क्रेडिट स्प्रेड, वन इज लिक्विडिटी प्रीमियम. So what is yield spread? Yield spread is basically summation of these two items. क्योंकि ये तीनों चीजें तो, ये तीनों चीजों की अगर बात करते हैं, ये तीनों चीजें तो दोनों की सेम है ना. So that is what? That is my yield spread. Please. Is this point clear? Chinmay, is this point clear? Yes, sir. Sarthak, is it fine? Yes, sir. So the level and volatility of yield spread are affected by credit and business cycles. So definitely, if we talk about spread, if the spreads are going up, coming down, going up, coming down, it depends upon what? The credit rating as well as the business cycles, the financial performance of the bond issuer. Yes. So let us see.
yield spread tend to narrow down when credit cycle is improving. If credit cycle is improving, it means now the company is recovering quickly and they are paying late, so it means credit cycle is improving. And again, from the economy point of view, if economy is expanding, financial market and investors demand for new debt issues are strong. So when the yield spread will come down, when the yield spread will be narrow. So different. One is if the credit cycle is improving, then this yield spread will come down. Second, if the economy is expanding, then again this yield spread will come down. Because when economy expands, so credit rating component, credit spread, if we talk about, it comes down. क्योंकि देखिए, इकोनॉमी बूम करेगी, इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है, तो कंपनी के डिफॉल्ट के चांसेस कम होते हैं क्योंकि कंपनी का भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो क्रेडिट स्प्रेड उसकी कम होगी, सो अल्टीमेटली ये स्प्रेड कम हो जाएगी. फाइनेंशियल मार्केट्स और इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, वो उन और ज्यादा लोन रेस कर रहे हैं मार्केट से, और ज्यादा लोन रेस करेंगे मार्केट से, तो इसका मतलब डिमांड है डेट की, तो इसका मतलब क्रेडिट लिक्विडिटी इजीली है, तो अल्टीमेटली अगेन इट विल कम डाउन. सर मतलब जिस समय रिसेशन चलेगा या हालत खराब होगी इकोनॉमी की, तभी पैसा अच्छा मिलेगा? नहीं, पैसा अच्छा कैसे मिलेगा? जिस यील्ड स्प्रेड कम होने का मतलब, लेकिन फिर वहां पर रिस्क भी तो बढ़ गया. आप समझ रहे हो, वहां पर रिस्क भी तो बढ़ गया. अगर आपको ध्यान हो तो कुछ टाइम पहले फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की कुछ एक जो क्रेडिट रेटिंग से रिलेटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स थी, उसमें प्रॉब्लम आ गई. जी सर. सुना था आपने ये? हाँ जी, हाँ जी. वो क्या था? वो यही तो था कि मार्केट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो क्रेडिट वर्दीनेस कंपनीज की खराब थी. अब देखा जाए, क्रेडिट वर्दीनेस खराब थी, जो जंक बॉन्ड्स काइंड ऑफ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उसके कारण क्या हुआ, जो भी उनका पोर्टफोलियो था सब कुछ गड़बड़ा गया. आप समझ रहे हो? तो भले ही वो, अगर स्प्रेड की बात करते हैं हायर थी, स्प्रेड की बात करते हैं हायर थी, इसलिए उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया था कि यहां पर हमें ज्यादा स्प्रेड मिलेगी. लेकिन हुआ क्या, उन कंपनीज की हालत इतनी खराब हो गई कि अल्टीमेटली देवर ऑन बैंकरप्सी, तो पैसा देना भी मुश्किल हो गया, तो वो प्रॉब्लम होगी ना. तो डेफिनेटली अगर हम बात करते हैं, यील्ड स्प्रेड होगी जब इकोनॉमी डाउन है, लेकिन यील्ड स्प्रेड किस लिए हो रही है? क्योंकि रिस्क बढ़ गया है. जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है उसमें रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि कौन डिफॉल्ट करेगा, कब कब वो बैंकरप्ट हो जाएगा, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. तो वो इन्वेस्टर के रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि उसे रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. क्योंकि आप ये देखिए ना, फंड्स के फंड्स पूरे बंद करने पड़ गए. तो जब फंड्स के फंड्स बंद करने पड़ गए, जहां पर एक ही जगह पैसा इन्वेस्टेड नहीं था, तो अगर आपने किसी इंडिविजुअल कंपनी का, आपने रिसेशन के टाइम पर कुछ डेट खरीद लिया जहां पर यील्ड स्प्रेड बहुत हाई है, तो कल को प्रॉब्लम हो सकती है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर. So again, you can just read it. This is something which we have already discussed. Is it done? Is it done, Sarthak and Chinmay? Yes, sir. Please try these questions. Is it done? यस सर. सर फर्स्ट का सी होगा ना? अभी देखते हैं. इंटरेस्ट मैंने देखा नहीं है, मैं देखता हूँ. फर्स्ट गलत है अभी, इसके अकॉर्डिंग और कौन सा गलत है आपका? फोर्थ. सॉरी नहीं, सॉरी थर्ड. फर्स्ट और थर्ड. थर्ड. ठीक है, देखना शुरू करते हैं. हायर क्रेडिट रिस्क इज इंडिकेटेड बाय अ हायर
FFO टू डेट रेशियो, एबिटा, ये तो हमारी क्या है, देखिए फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ज्यादा है, डेट कम है, सो ये तो लोअर क्रेडिट रिस्क है। सर वो चीज मतलब उल्टा हो गया इसलिए। हाँ सही है सर, वो डी बी होना चाहिए उसका। क्योंकि डेट ज्यादा है ना, न्यूमरेटर में Right. हमारा डेट ज्यादा है। यस। थर्ड, क्रेडिट स्प्रेड टेंड टू वाइडन एज, अभी अभी तो हमने देखा क्रेडिट स्प्रेड कब बढ़ेगी, जब इकोनॉमिक इकोनॉमिक कंडीशन कंडीशन बिगड़ खराब होगी, जाएगी। बिगड़ जाएगी, तो वही तो है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इज इट फाइन? ठीक है। So, friends, this is the second reading related to what? This is the second reading of fixed income, which is completed now. So we have completed two readings. One is the defining elements and the second is credit analysis. So please just revise these readings. इसको आप लोग घर पर कीजिए. Okay. And you have seen that ultimately, although this is theoretical, but what happens, how they ask the questions. ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। I hope things are clear to you. जो भी कुछ हमने किया वो समझ आ गया आप लोग को? हाँ सर। ठीक है, सार्थक, इज इट डन? यस सर, यस। ओके ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास देखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास आप 7 to 9 कह रहे हैं ना, चलिए। तो जैसे भी होगा आई विल इन्फॉर्म 1 day प्रायर, जब भी हमें क्लास रखनी होगी। इस वीक में आपकी और कोई वीकडे के बीच में क्लास है? क्योंकि जैसे मैं थर्सडे को प्लान कर रहा था, लेकिन थर्सडे को आया कि आप लोगों की रिग्रेशन की क्लास चल रही थी, तो ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं सर, दिस वीक में तो कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं। ठीक, ओके, प्लीज जस्ट कंप्लीट इट। सो थैंक्स फॉर द डे, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।